Hello everyone, welcome to the Academics. I'm Amrit. I firmly believe that should keep trying until we get it right. Let's start our trial for today. Let's start with a new chapter, that is mensuration for class 7. Mensuration is a chapter where many students find it difficult to get a grip on the subject and solve different kind of questions. So let's understand bit by bit solving perimeter and area questions for different sorts of figures, and then go ahead and get a firm grip on the subject. So if you are watching my videos and liking them, then please do like, share and subscribe to my channel, The Academics. Let's start. Let's start with the chapter of mensuration. First, we'll discuss about perimeter and area of rectangle and square. Then we'll go for perimeter and area of parallelogram and rhombus, area of triangle, and finally we will complete the chapter with circumference and area of a circle. So we'll do it in sections. So let's start with perimeter and area of rectangle and square. Now you know rectangular is a figure which has four sides. It's a closed figure which has four sides, and all the adjacent sides make 90-degree angle with each other, right? So we will try to understand how to find its perimeter and area as well. Perimeter is what? Perimeter of any figure is this is the length of its boundary. जब हम सारे sides के length को मिला देते हैं, वो जो बनता है उस पर्टिकुलर फिगर का पेरीमीटर। और एरिया है एक पर्टिकुलर क्लोज्ड फिगर, इनक्लोज्ड फिगर के अंदर जो स्पेस है उसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम टच करते हैं उसे कहते हैं एरिया, राइट? तो दिस इज द एरिया, दिस इनसाइड पार्ट इज द एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर, एंड बाउंड्री इज द आउटर साइड। अगर मैं मान लो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, फोटो फ्रेम है, उसके चारों तरफ लेस लगाऊंगी। अब लेस का लेंथ कितना होगा वो कैसे पता चलेगा? आई हैव टू एड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम, और उसके बाद उस हिसाब से लेस का लेंथ में लूंगी एंड उसे लेस साइड्स में उसको लगा दूंगी। सो दैट इज पेरीमीटर एंड द एरिया इज द इनसाइड सरफेस। सो ठीक, now we will understand what is the formula based on which we are going to calculate area. There is only one formula for all the figures that we are going to discuss, whether it's rhombus or parallelogram or square or rectangle. That is area equal to base into height. If you have the habit of trying to remember different formula, then this is going to be solved in this particular video. You don't need to remember any formula here. You have to just use this particular master formula or ACE formula, that is area equal to base into height. From there we will derive rest of the formulas for different enclosed figures. Now let's do perimeter and area of rectangle. तो ये जो रेक्टेंगल है उसके दो साइड्स होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, मतलब दो डिफरेंट एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो लेंथ और ब्रेथ होते हैं। ऑपोजिट साइड सेम होते हैं, माने ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ है, लॉन्गर साइड लेंथ ही रहेंगे दोनों साइड में सेम, और जो शॉर्टर साइड्स हैं ब्रेथ वो भी लेंथ में सेम रहते हैं। सो ब्रेथ ब्रेथ लेंथ लेंथ। और एरिया उसका मैंने कहा था एक ही मास्टर फॉर्मूला है, बेस इनटू हाइट। अब इसको कैसे यूज़ करें यहाँ पर? अगर आप देखो एक रेक्टेंगल में एक स्पेशल चीज़ ये होती है कि सारे जो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर ऑपोजिट साइड्स सेम लेंथ के होते हैं और एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो राइट एंगल बनाते हैं। सो राइट एंगल बनता है अगर यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, ये जो लेंथ है उसको हम बेस जैसा ले सकते हैं, राइट? और उस पर ये खड़ा हुआ है ये ब्रेथ, सो दैट इज द हाइट हियर, राइट? सो अगर मैं बेस इंटू हाइट को अपना मास्टर फॉर्मूला कह रही हूँ, डेफिनेटली ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल में भी काम करेगा। सो मेरा बेस इंटू हाइट यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर बेस क्या है? बेस है लेंथ और हाइट है ब्रेथ। सो देखा, you don't need to remember any formula other than base into height. From this base into height only आपने area of rectangle derive कर लिया। बेस को, बेस इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ हो जाता है और हाइट क्या बन जाता है? ब्रेथ। और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में? स्क्वायर्ड यूनिट्स। मतलब अगर लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में है, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली दो सेम साइड्स सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट के दो डिमेंशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा। वैसे मीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा या तो किलोमीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा। सो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है
या एरिया ऑफ एनी फिगर, एनक्लोज्ड फिगर हम जब निकालते हैं वो स्क्वायर्ड आता है उसके लिए, ठीक है। 2D फिगर का जब हम निकालते हैं एरिया ऑफ 3D का निकाले तो भी स्क्वायर्ड आएगा, क्योंकि हम जो है वो जो सरफेस टच कर सकते हैं वो तो 2D है ना, उसी का एरिया निकाल रहे हैं, सो दैट विल ऑलवेज बी स्क्वायर्ड, राइट। अब जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे आते हैं। इसका पेरीमीटर भी आराम से निकल जाएगा क्योंकि ये एक एनक्लोज्ड फिगर है रेक्टेंगल, जैसे कहीं से खुला तो नहीं है। सो उसका बाउंड्री निकालने में क्या प्रॉब्लम है, लेंथ लेंथ प्लस लेंथ, ये देखो ये लेंथ प्लस दिस ब्रेड्थ, मैं लिख लेती हूँ लेंथ प्लस, अच्छा नीचे लिखती हूँ बेटा, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये लेंथ प्लस ये ब्रेड्थ प्लस दिस लेंथ अगेन हियर थर्ड, और ये एक लेंथ है, लेंथ प्लस दिस ब्रेड्थ हियर, ये सब मिला के पेरीमीटर बनता है। अब लेंथ प्लस लेंथ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ब्रेड प्लस ब्रेड क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। 12 प्लस 2b हो गया। 12 प्लस 2b को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। 2 को मैं बाहर लिख दूंगी और लेंथ प्लस ब्रेड विद इन ब्रैकेट्स, तो ये हो जाता है, ये 12 प्लस 2b से हम यहाँ पहुँच गए हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। सो दिस इज एक्चुअली द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, और इसको हम यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। सो सेंटीमीटर अगर है दोनों लेंथ और ब्रेड तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा पेरीमीटर, सिमिलरली मीटर में आएगा या तो फिर किलोमीटर में आएगा या तो फिर किसी और यूनिट में आएगा जिस यूनिट में भी लेंथ एंड ब्रेड्थ है। तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो वही यूनिट रहेगा, चेंज नहीं होता है इसमें। अब लेंथ कैसे निकाले अगर एरिया और ब्रेड दिया गया हो, नाउ वी नो, हमने डिस्कस कर लिया ए लेंथ इंटू ब्रेड इज इक्वल टू एरिया। मान लो ब्रेड दिया गया है, एरिया दिया गया है और हमें लेंथ निकालना है। सो अगर मैं दोनों साइड ब्रेड ब्रेड डिवाइड कर लूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ब्रेड ब्रेड लेफ्ट हैंड साइड में कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एल इज इक्वल टू एरिया बाई ब्रेड। तो यही फॉर्मूला हमने लिखा है, लेंथ एल इज इक्वल टू एरिया बाई ब्रेड। ठीक वैसे ही अगर एरिया और लेंथ दिया गया हो और हमें ब्रेड पूछा गया हो एक रेक्टेंगल का, तो ब्रेड विल बी इक्वल टू एरिया बाई लेंथ, ठीक है। सो दिस इज द सेम फॉर्मूला दैट वी कैन यूज, ओके। एक दिया गया है तो दूसरा डायमेंशन निकालने के लिए। अब डायगोनल पे आ जाते हैं, डायगोनल कैसे निकालें। डायगोनल जो होता है इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल, दोनों ही डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है एक रेक्टेंगल में, दोनों डायगोनल्स जो है सेम लेंथ के होते हैं। और यहाँ पर देखो, एक डायगोनल अगर हम ऐसे ले लें फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर, एक एक बनाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ब्लैक में ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने की कोशिश की है एटलीस्ट। सो यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम तो आराम से लग सकता है। अब डायगोनल क्या बनेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का, डायगोनल जो है वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, और जो बेस है वो है लेंथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्चुअली बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका परपेंडिकुलर या फिर हाइट जो है वो क्या है फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन एक्चुअली क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर, जैसे भी लिखो आप। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है एल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, हाँ, सो परपेंडिकुलर क्या है, वो है ब्रेड्थ। सो एल स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें देगा हाइपोटेन्यूज, जो कि इस केस में डायगोनल है फॉर द रेक्टेंगल। तो डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी यूनिट्स में ही आएगा, राइट। इसका जो भी लेंथ और ब्रेड जिस यूनिट में है, डायगोनल का भी उसी यूनिट में आंसर आएगा। सो हमने डिस्कस किया एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, लेंथ, ब्रेड्थ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड द अदर डायमेंशन गिवन इन द क्वेश्चन। उस हिसाब से सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए, और हमने एरिया किस फॉर्मूला बेसिस पे डिराइव किया है, बेस इंटू हाइट, ये याद रखो। तो एरिया निकालने में किसी भी एनक्लोज फिगर का ईजी रहता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर एंड एरिया फॉर स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल जैसा ही है, बट एक डिफरेंस है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ एक ही मेजरमेंट के हैं, मतलब
ए ये साइड है तो ए इस साइड में भी लेते हैं। अब ए ही क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं एक्स यूज़ करूँगी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ ए। सो इट्स अप टू यू। आप अगर ए लिखने की जगह लेंथ ऑफ वन साइड इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर अगर आप ए नहीं लिख के एक्स लिखना चाहते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स फॉलो दिस मेथड ऑफ राइटिंग ए फॉर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो मैंने भी यहाँ पर ए लिखा है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या बनेगा? अगेन बेस इंटू हाइट हम लेंगे। बेस इंटू हाइट मतलब बेस क्या है यहाँ पर? ए। हाइट क्या है? वही ए। स्क्वायर के तो चारों साइड सेम लेंथ के होते हैं, सो दैट विल बी ए। सो बेस इंटू हाइट हम अगर देखें तो ए इंटू ए ही आएगा। सो इट इज बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब बेस भी ए, एरिया भी ए, सो इट इज ए इंटू ए। ए इंटू ए स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों हो रहे हैं ये तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, तो ये तो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करती। बस याद रखना है कोई सा भी एरिया किसी का भी निकालो स्क्वायर यूनिट्स होता है। सो ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या है? मैं ए स्क्वायर यूनिट्स ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट? अब क्या है नेक्स्ट? वी विल सी पेरीमीटर। पेरीमीटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, तो यहाँ पर क्या है? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब चार हैं तो 4a हो जाएगा। वी हैव लर्न ऑल दिस इन एल्जेब्रा। अब एल्जेब्रा में क्यों जाओ? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा 4a यूनिट्स। अच्छा, मान लो साइड दिया गया है, ओके, साइड नहीं दिया गया है, एरिया दिया गया है, एंड वी हैव टू फाइंड लेट्स से द साइड। एरिया दिया गया है और साइड हमें ढूंढना है, तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर? तो मान लो एरिया अगर 64 है, आई एम जस्ट राइटिंग रैंडम एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग रैंडम एग्जाम्पल। 64 स्क्वायर यूनिट्स है, तो उसका जो साइड है वो हमें अगर पूछा जाए, तो साइड क्वेश्चन मार्क ऐसे पूछा जाए तो कैसे निकालें? साइड विल बी व्हाट? साइड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 64। व्हाई? बिकॉज एरिया का फॉर्मूला क्या है? साइड इन साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर कोई जस्ट हो गया, एक ही लिखते हैं, चलो ए ही लिखते हैं, सो दैट अवॉइड करते हैं किसी टाइप का कंफ्यूजन। सो ए स्क्वायर, सो ए विल बी व्हाट? ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो क्या हो जाएगा? 8। 8 यूनिट्स का हो जाएगा ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। सो इस तरह से अगर एरिया दिया गया हो तो हम लोग साइड निकाल सकते हैं ना। अगर पेरीमीटर दिया गया हो, पेरीमीटर से 16 और व्हाट शुड इट बी 32। अगर पेरीमीटर मान लो 32 दिया गया है, मैं यहाँ लिखती हूँ, मान लो पेरीमीटर दिया गया है फॉर अ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32, और हमें साइड पूछा जाए, एक साइड हमें उसका लेंथ बताओ, इन्हीं साइड, साइड तो सेम ही है इन केस ऑफ स्क्वायर, सो दैट विल बी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, है ना? अगर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, तो a क्या होगा? a विल बी इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। सो 4 4 4 8 32, तो बच गया क्या? 8। तो 8 यूनिट। सो perimeter for a square with side 8 units will be always equal to 32, है ना? और इस तरह से एरिया अगर हमें पूछा जाए तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 64 फॉर स्क्वायर विथ साइड 8 यूनिट्स। तो ये हो गया साइड व्हेन एरिया इज गिवन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। इससे हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है इसी फॉर्मूला को डाल के, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। और पेरीमीटर बाय 4 हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके इफ पेरीमीटर इज गिवन साइड कैसे निकालें वो भी देख लिया है। नाउ डायगोनल की बात आती है। यहाँ पर अगर डायगोनल देखें, वो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, बिकॉज all four sides, I mean all adjacent sides together form a right angle triangle at each of the four vertices of a square. तो यहाँ पर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सो दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी हाउ मच? हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? ये राइट एंगल में ये वाला हम, लेट्स टेक दिस राइट एंगल हियर, आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल बोल्ड फॉर यू टू सी। ये जो है इधर जो है ये डायगोनल जो है वही हाइपोटेन्यूज है। सो डायगोनल विल बी जस्ट लाइक इन केस ऑफ रेक्टेंगल, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पर बेस भी ए है, हाइट भी ए है, सो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर तो निकल जाएगा,
बिकॉज a इंटू ए इज ए स्क्वायर, राइट? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो एक ही ए रहेगा फाइनली, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर। आई जस्ट इरेज दिस पार्ट हियर। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर, रूट टू इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू ए। तो ये थोड़ा नया है आपके लिए, थोड़ा याद रखना ये पड़ेगा। बट किस तरह से डिराइव करते हैं हम, ये तो मैंने सिखा दिया। वही पाइथागोरस थ्योरम का हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर लगा के हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर रहे हैं टू फाइंड द हाइपोटेनस और द डायगोनल फॉर अ स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 होता तो उसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 2 निकल आता, पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ से? सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज लगभग इक्वल टू 1.414। यू नीड नॉट वरी, वो वैल्यू आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में दिया गया हो। इफ साइड इज गिवन एंड डायगोनल इज बिंग आस्क्ड कि डायगोनल का लेंथ बताओ, या तो कुछ ऐसा होगा कि स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर वो उसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का दे दिया गया होगा उस क्वेश्चन में। सो स्क्वायर रूट टू a that is equal to the value of diagonal of a square। तो ये भी यूनिट्स में ही आएगा फाइनली, यहाँ पर कोई साइड इंटू साइड नहीं हो रहा है। सो ये आंसर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विल ऑल्सो कम इन यूनिट्स। सो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नया सीखा हमने इस साल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इज डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अगर डायगोनल दिया गया हो और साइड पूछा गया हो ऑफ अ स्क्वायर, कैसे निकाले? हमें पता है डायगोनल d for diagonal is equal to okay, I'll just change it, root 2a, मैंने a से पहले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैं रूट 2 इसी को बोल रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रूट 2 कह रही हूँ। सो रूट 2a, ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया। अब a अगर पूछा जाए, डायगोनल दिया गया तो कैसे निकाले? आई डिवाइड दिस रूट टू दिस साइड एज वेल एज द अदर साइड। सो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a इज इक्वल टू डी बाई रूट 2। तो वही यहाँ पर लिखा है। आई शुड इरेज दिस पार्ट नाउ सो दैट द फॉर्मूला इज क्लियरली विजिबल विदाउट एनी आसपास कुछ लिखा हुआ ना हो तो बेटर है। साइड इज इक्वल टू a इज इक्वल टू डायगोनल बाई रूट 2। ओके, तो साइड इन टर्म्स ऑफ एरिया इज स्क्वायर रूट ऑफ a, and side in terms of perimeter is perimeter by 4, and side in terms of diagonal is diagonal by square root of 2। ओके, ये फॉर्मूला हमें थोड़े ठंडे दिमाग से याद रख लेंगे तो इजीली हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।